کے تازہ حملے کی مذمت کی ہے۔ بیورو رپورٹ ETV نیوز۔ خبر کھیل کے میدان سے۔ نیوزی لینڈ کے ساتھ کھیلے گئے پہلے ایک روزہ میچ میں ٹیم انڈیا کو نیوزی لینڈ نے 24 رنوں سے شکست دے دی ہے۔ پہلے بلے بازی کرتے ہوئے نیوزی لینڈ نے مقررہ 50 اوورز میں ہندوستان کے سامنے 293 رنوں کا نشانہ رکھا۔ ہندوستانی بلے باز وراٹ کوہلی کی سنچری اور محمد شامی کی بہترین گیند بازی کے باوجود ہندوستان یہ میچ جیت نہیں سکا۔ محمد شامی نے بہترین گیند بازی کرتے ہوئے نیوزی لینڈ کے 4 اہم بلے بازوں کو پویلین کا راستہ دکھایا، لیکن جواب میں ہندوستانی ٹیم مقررہ نشانہ عبور نہ کر سکی۔ 293 رنوں کے نشانے کا پیچھا کرنے میدان میں اتری ہندوستانی ٹیم کے وقفے سے وکٹ گرتے چلے گئے اور 48 اوور 4 گیندوں میں 268 رن کے مجموعی سکور پر ہندوستانی ٹیم آل آؤٹ ہو گئی۔ ریکارڈ اور دھونی ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ ان کی کپتانی میں ٹیم انڈیا ٹیسٹ ون ڈے اور T20 میں نئی بلندیوں کو چھو رہی ہے۔ دھونی وکٹ کے آگے اور پیچھے ہر مشکل موقع پر محاذ سنبھال لیتے ہیں۔ ضرورت پڑنے پر گیند بازی کا رول بھی نبھانے سے وہ گریز نہیں کرتے۔ کل دھونی نے ریکارڈ بنایا، راس ٹیلر ان کے 300ویں شکار بنے۔ That's his third one in the innings and a crucial one, just as you say, they've got to stay, one doesn't. شامی کی گیند پر راس ٹیلر کا یہ کیچ معمول کا کیچ ہے، لیکن اس کی اہمیت نہ میچ کے نقطہ نظر سے کم ہے اور نہ ہی دھونی کے ذاتی کھیل کے اب تک کے سفر سے۔ ٹیلر ولیمسن کے ساتھ نیوزی لینڈ کی لڑکھڑاتی باری کی نہ صرف مرمت کر چکے تھے بلکہ اسے ایک پلیٹ فارم دے چکے تھے جہاں سے آنے والے بلے بازوں کے لیے بورڈ پر بڑا اسکور رکھنے کا کام آسان ہو گیا تھا، اور ہوا بھی وہی۔ بہرحال اس کیچ کی اہمیت دھونی کے ریکارڈ بک کے لیے الگ ہے۔ وہ پہلے ہندوستانی وکٹ کیپر ہے جنہوں نے ایک روزہ میچوں میں 300 کھلاڑیوں کو پویلین کا راستہ دکھانے میں اہم رول ادا کیا ہے۔ ٹیلر دھونی کے 300ویں شکار ہیں۔ دھونی نے 239 میچوں میں یہ کارنامہ انجام دیا ہے۔ اس طرح وہ 300 یا اس سے زیادہ شکار کرنے والے وکٹ کیپروں کے ممتاز کلب میں شامل ہو گئے ہیں، جس میں آسٹریلیا کے گلکرسٹ، سری لنکا کے کمارا سنگاکارا اور جنوبی افریقہ کے مارک باؤچر شامل ہیں۔ دھونی کے 301ویں شکار میکولم بنے۔ میکولم کا کیچ دھونی نے بھونیشور کمار کی گیند پر لپکا۔ اسی میچ میں بحیثیت کپتان نیوزی لینڈ کے خلاف سب سے زیادہ کیچ لینے کا محمد اظہر الدین کا ریکارڈ بھی توڑ دیا۔ نیوزی لینڈ کے خلاف راس ٹیلر کا کیچ دھونی کا 10واں کیچ تھا۔ اپنے کیریئر کی شروعات وکٹ کیپر بلے باز کی حیثیت سے شروع کرنے والے دھونی کی وکٹ کیپنگ کی شروع میں نکتہ چینی کی گئی تھی، لیکن کول دھونی نے تنقیدوں پر کبھی توجہ نہیں کی۔ ان کی نگاہ ہمیشہ نتائج پر رہی اور اس کے حصول کے لیے دھونی نے کھیل کے ہر اس پہلو پر دھیان دیا جس میں انہیں امپروومنٹ کی ضرورت تھی، اور آج وہ جس مقام پر ہے وہ اس کے مستحق ہیں۔ بیورو رپورٹ ETV نیوز۔ ETV انڈیا میں آج بس اتنا ہی۔ ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دیکھیے ETV اردو کشمیر۔ آداب۔ کوکن میں تہذیب اور تمدن کے پیشرو اور علمبردار حضرت دیوان شاہ کی سوانح حیات پر خصوصی پیشکش۔ پروگرام بارگاہ عقیدت میں بدھ کی رات 8:30 بجے، جمعہ دوپہر 2:30 بجے، صرف ETV اردو پر۔ ETV اردو پر اگلا پروگرام آداب۔ ETV اردو کشمیر میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز پر ایک نظر۔
ट्रक ड्राइवरों की गिरफ्तारी मामले का एलओसी ट्रेड पर नहीं पड़ना चाहिए असर, एलओसी को सबूताज करने की कोशिश काबिल तशवीश, महबूबा मुफ्ती का बयान। यौम जमहूरिया के पेश नजर जनूबी कश्मीर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, इलाके में 2 दर्जन से जायद मिलिटेंट सरगर्म। और मुल्क के दीगर हिस्सों के साथ जम्मू कश्मीर में भी पोलियो मुहिम जारी, 5 साल तक के बच्चों को पिलाई जा रही है पोलियो की खुराक। और अब खबरें तफसील के साथ। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने एलओसी ट्रेड को सबूताज करने की कोशिश पर तशवीश का इजहार किया है। सलामाबाद उड़ी ट्रेड सेंटर में मनशियात की बरामदगी के बाद ड्राइवरों की गिरफ्तारी के बारे में बात करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि इस मामले में कसूरवारों को सजा मिलनी चाहिए और इस वाकये की वजह से एलओसी ट्रेड पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। वो एक तकरीब के दौरान श्रीनगर में अपनी रिहायशगाह पर मीडिया से बात कर रही थी। कि हमारे ड्राइवर वहां हैं, वहां के लोग यहाँ हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस ट्रेड को सैबोटाज करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, इस रास्ते को खुले हुए तकरीबन 10 साल हो गए हैं। अगर 10 साल में एक ऐसा वाकया हो गया है, आप वहां एक्शन ले लीजिए, मगर आप पूरा ट्रेड को बदनाम मत कर लीजिए। आप इसको, ये जो हादसा हुआ है, इसको बहाना मत बनाइए। जितना भी थोड़ा सा ट्रेड हो रहा है, उसको बंद करने का इसको एक्सक्यूज मत बनाइए, वो मेरा कहना है। मैं तो ये कहती हूँ, मरकजी सरकार क्या कर रही है, सोई है। वो क्यों नहीं पाकिस्तान की जो सरकार है, जो पीएके की सरकार है, उनके साथ ये मामला उठा के इसको सुलझाते हैं। मैं चाहती हूँ कि इस हादसे को, ये जो भी कुछ हुआ है बहुत बुरा हुआ है, मैं उम्मीद करती हूँ कि मरकजी सरकार इसमें इंटरवीन करके इस मामले को जल्द अज जल्द सुलझा के इस पे जो कारोबार की आमद को दोबारा बहाल करे। यौम जमहूरिया के सिलसिले में जनूबी कश्मीर में भी सख्त सिक्योरिटी इंतजामात किए गए हैं। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह और दीगर सड़कों पर पुलिस व नीम फौजी दस्ते तैनात किए गए हैं, जबकि जिला सदर मकामात को जाने वाली तमाम सड़कों पर खुसूसी नाके कायम किए गए हैं। पेश है मुदस्सिर कादरी की ये रिपोर्ट। 26 जनवरी को यौम जमहूरिया की तकरीबात के पेश नजर मिलिटेंसी के तनाजुर में हसास तस्वुर किए जाने वाले जनूबी कश्मीर में कड़े और गैर मामूली सिक्योरिटी इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई है। अनंतनाग समेत तमाम जिला सदर मकामात को जाने वाली शाहराहों और सड़कों पर पुलिस और नीम फौजी दस्तों के खुसूसी नाके कायम किए गए हैं और हर गाड़ी और मुसाफिरों की बारीक बीनी से तलाशी ली जा रही है। पुलिस के मुताबिक जनूबी कश्मीर में इस वक्त कुछ गैर मुल्की मिलिटेंटों समेत 2 दर्जन से जायद मिलिटेंट सरगर्म है, जो यौम जमहूरिया की तकरीबात में रख न डालने की कोशिश कर सकते हैं। थ्रेड की बात है कि थ्रेड तो हरदम रहा है साउथ कश्मीर में, क्या पूरी कश्मीर में। तो साउथ कश्मीर में लगभग लोकल मिलिटेंट है 20 और 5-6 मिलिटेंट फॉरेनर हैं, जो कि खास के त्राल के एरिया में कंसंट्रेट है, त्राल और पुलवामा के बेल्ट में। तो सिक्योरिटी ग्रेड में कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुई है। जहां भी आर्मी डिप्लॉयड थी वहीं पर है, पुलिस भी है, सीआरपी भी है, हमारे एसओजी कैंप भी है और इधर काफी कॉम्बिंग ऑपरेशन भी चल रहा है। हर जगह नाका चेकिंग, फिस्किंग चेकिंग हो रहा है, रात में पेट्रोलिंग हो रही है। जनूबी कश्मीर के डीआईजी विजय कुमार इस बात का भी एतराफ करते हैं कि जनूबी कश्मीर में सरगर्म मिलिटेंट नई भर्तियों की कोशिश में हैं और माजी की तरह वो इस बार भी कुछ नई भर्तियां करने में कामयाब हो गए हैं, जिससे हिफाजती अमले के लिए एक नया चैलेंज पैदा हो गया है। हाँ, रिसेंटली इस साल करीब 6-7 नए लड़के जो एलईटी और एचएम ज्वाइन किए हैं, हम लोग को पूरी तरह पता है। उसके खिलाफ एंट्री भी कर दी गई है और कैटेगराइज भी कर ली हम लोग। सबसे पहले उनके घर वालों को बुला के हम लोग समझाएं कि बच्चों को फिर से मेन स्ट्रीम में लाएं। तो अभी घर वाले लाने में नाकाम रहे हैं, तो फिर उसको हम लोग कैटेगराइज कर लिए, मिलिटेंट के रूप में डाल दिए। वाज़ेह है गुज़िश्ता साल मिलिटेंटों और हिफाजती अमले के बीच जनूबी कश्मीर में तकरीबन 1 दर्जन तसादुम आराइयां हुई, जिनमें 2 तरफा जानी नुकसान हुआ और कई बड़े मिलिटेंट कमांडर भी मारे गए। जबकि बज़ाहिर पुरअमन अनंतनाग में इस दौरान पुलिस और फौज पर मिलिटेंटों की जानिब से 5 बार हमले भी किए गए। ईटीवी न्यूज, अनंतनाग।
मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह जम्मू कश्मीर में भी कल पल्स पोलियो मुहिम का आगाज किया गया। इस सिलसिले में अनंतनाग में 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए गए। जिले में मुहिम का आगाज अनंतनाग की MCH से हुआ, जहां DC अनंतनाग ने एक नौज़ायदा बच्चे को पोलियो की खुराक पिलाई। वाज़ेह रहे कि जिले में इस बार लगभग 1.5 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जा रहे हैं और इसके लिए जिला भर में 635 पोलियो बूथों का क़याम अमल में लाया गया है। जिले कोलगाम में भी पल्स पोलियो मुहिम के हवाले से 5 साल तक के बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए गए। मुहिम का आगाज चोलगाम कोलगाम से किया गया, जहां पर जिला के तरक्याती कमिश्नर के अलावा महकमे सेहत के अफसरान और मकामी लोगों ने शिरकत की। इसके अलावा जिला अस्पताल में भी इंतजामिया ने मुकम्मल इंतजामात के साथ मुहिम का आगाज किया। वजीर बराए तिब्बी तालीम ताज मोहिउद्दीन ने जम्मू के SMGS अस्पताल से पल्स पोलियो मुहिम का आगाज किया। 5 साल तक के उम्र के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई गई। इस मौके पर ताज मोहिउद्दीन ने कहा कि मुल्क में सेहत के शोबे पर रियासती और मरकजी हुकूमतें खास तवज्जो दे रही हैं। उधर करगिल में भी DC करगिल और चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर ने पोलियो मिशन का इफ्तिताह किया। शदीद सर्दी के बावजूद बड़ी तादाद में बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए गए। इसके अलावा डोडा, किश्तवाड़, राजौरी, कठुआ और पुंछ में भी 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई गई। सर्दी की वजह से रोड बंद है जास्कार एरिया में और द्रास इलाके में, तो वहाँ टाइमली बिफोर क्लोजर ऑफ रोड, बिफोर स्नोफॉल वहाँ जो इम्यूनाइजेशन है वो सब वहाँ पहुँचाया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कंट्री के बाकी के साथ साथ हमारे करगिल में भी ये पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन की मुहिम जो है बराबर ठीक चल रहा है। तो हमारे यहाँ भी अभी तक कोई पोलियो केस जो है अभी तक हमारे यहाँ रिपोर्ट नहीं है। हमारे यहाँ -11-12 डिग्रीज पे और द्रास में तो लगभग -20-25 डिग्रीज पे हम ये। वादी में बिजली का बहरान अब संगीन नौइयत इख्तियार कर रहा है। अनंतनाग के बेटंगू इलाके में कल बिजली की बहाली की मांग को लेकर पुलिस और एहतजाजियों के बीच झड़पें हुई, जिसके नतीजे में एक मकामी अखबार का फोटोग्राफर समेत कई अफराद जख्मी हो गए। ये वाकया उस वक्त पेश आया जब बिजबिहाड़ा के लगभग 1 दर्जन इलाकों के लोग एहतजाज करते हुए जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर पहुंच गए और हुकूमत व महकमे PDD के खिलाफ मुजाहिरे करने लगे। मुजाहिरीन का कहना है कि 2 हफ्ते कबल रिसिंग स्टेशन वीरी का बिजली ट्रांसफार्मर खराब हो गया और उस दिन से लगभग 1 दर्जन इलाकों के लोग बिजली से महरूम हो गए हैं। लोगों ने इल्जाम लगाया कि सियासी रस्साकशी की बिना पर अब तक मुतालिका महकमा लोगों को बिजली फराहम करने में नाकाम रहा है। लोगों ने हुकूमत से अपील की है कि वो इन इलाकों में जल्द से जल्द बिजली की फराहमी को यकीनी बनाए। लगातार 3 हफ्तों से हमारे 5 इलाके 6 इलाके बिजली टोटल कट ऑफ है। हमने कंसर्न डिपार्टमेंट से बात की, हमने कंप्लेंट्स लिखे, PDD डिपार्टमेंट मैंने कंप्लेंट्स खुद लिखे हैं, PDD मिनिस्टर से हमने बात भी की। खेल रहे हैं और हम सब लोगों को उन्होंने ऐसा ये किया है। इसके बारे में हमने एक्शन साहब से भी बात की है। इससे पहले बहुत सारे जलसे हमने निकाले हैं, कोई भी एक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ है। जनाब इस्तेसाल हाल खास कर अत हमशली बुकस त्रेहिस गाम जन पावरस पे बटिंगू हरनाग ट्रांसफार्मर 5 वो थमित अत पे वन और चलान ठीक योर चले ठीक, मगर अत सियासत मज खत्म कर जनाब हम चलान ट्रांसफार्मर हम कवन न तो न। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद लोन ने अंदरगाम पट्टन में एक अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में सियासी जमातों ने लोगों का इस्तेहसाल किया है। अंदरगाम पट्टन में सज्जाद गनी लोन ने लोगों से कहा कि वो आने वाले इंतखाबात में उनकी जमात पीपल्स कॉन्फ्रेंस के हक में वोट दें। कपोरा तम दो अम गो सड़क बिजली स्टोर अगर बस तुह नश आमुत
تکیاز تۄہہِ چھُو طاقت تۄہہِ چھُو ووٹ ییٚلہِ بہٕ تۄہہِ منٛگان چھُسو سپورٹ بہٕ چھُسو دپان یہِ طاقت دِیِو تُہۍ مےٚ ییٚلہِ اجتماعی طورس پٮ۪ٹھ یہِ طاقت واریاہ گژھِ مہادٕ حساب چھُ پتہٕ مےٚ تۄہہِ تُہنٛدِ بھلٲیی خٲطرٕ جموں میں کشمیری پنڈت تنظیموں کے جوائنٹ فورم نے 25واں ہولوکاسٹ ڈے منایا. اس موقع پر اشونی کمار چرنگو سمیت مختلف کشمیری پنڈت تنظیموں کے نمائندے موجود تھے. اشونی چرنگو نے کہا کہ حکومت اتنے برسوں میں بھی کشمیری پنڈتوں کے لیے وادی میں علیحدہ ہوم لینڈ سمیت دیگر مطالبات کو پورا کرنے میں ناکام ہے. संघर्ष के 25वें साल में हैं. एक 13 जुलाई को जॉइंट फोरम की ओर से जम्मू में एक दिवसीय पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस करेंगे. आज ही के दिन हम सरकार को याद दिलाना चाहते हैं कि उन्होंने कुछ ही दिन पहले अपने मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये आश्वासन दिलाया था कि इस साल वे असेंबली में टेम्पल्स एंड श्राइन्स बिल पेश करेंगे और उसको पास भी कराएंगे. साथ में ही हम प्रधानमंत्री जी को इस बात का खुलासा करने के लिए कहेंगे कि जो हाल ही में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में कोई सिक्योर अंडरस्टैंडिंग हुई थी कश्मीर के ऊपर, हम उस बात के लिए सारे देश को वो सामने रखे आखिर वो गुप्त रीति से किया गया समझौता क्या था. खबरें भी और भी हैं, फिलहाल यहां लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द लौटेंगे. नेशनल बॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया. जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने पीओपी, वहीं छुटकाऊ ने जेके वॉल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत. व्हाइट सीमेंट वाली जेके वॉल पुट्टी इज द बेस्ट. सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता, दीवारें बोल उठेंगी. मुझे बवासीर है, खून भी आता है, लेकिन ऑपरेशन से डरता हूँ. जैद ऋषि का कल्प्लो कैप्सूल और ट्यूब, 3 दिन 3 ही खुराक. 011 25 53 25 53. अच्छा, एक मुट्ठी भर जीने की आरज़ू, तब्दीली की चुटकी भर जुस्तजू, रोजमर्रा के मसाइल की ढेर सारी बेकरारियां, खाली पतीले में पकती घर भर की भूख, तारीखियों से लड़ इकट्ठा की हुई चुटकी भर धूप. जमहूरियत का अजीम त्योहार फिर से आया है. क्या हो आपका फैसला, बताएंगे मुल्क के भरोसेमंद सहाफी त्रिदीप रमन. वोट करेगा इंडिया. ब्रेक के बाद ईटीवी उर्दू कश्मीर में एक बार फिर आपका खैर मकदम है. मारूफ ट्रेड यूनियन लीडर मुंतजिर मोहियुद्दीन कल पीडीडी में शामिल हो गए. वो अपने सैकड़ों वर्करों के साथ पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती की रिहाइशगाह पर पहुंचे और वहां पर महबूबा मुफ्ती और दीगर पीडीपी लीडरों ने उनका पार्टी में खैर मकदम किया. इस मौके पर महबूबा मुफ्ती ने दावा किया कि रियासत में हर तरफ पीडीपी की हिमायत बढ़ रही है, जिसमें उनके मुताबिक नौजवानों की तादाद ज्यादा है. जम्मू कश्मीर लद्दाख हर खिते में आज लोग पीडीपी को पहचान रहे हैं. आज लोग पीडीपी कांग्रेस की जो वो कारकर्दगी रही 6 साल की, उसकी तारीफ करते हैं और चाहते हैं कि दोबारा वैसा ही दौर आए जिसमें यहाँ करप्शन खत्म हो, लोगों को इंसाफ मिले. मुंतजिर मोहियुद्दीन की खैर मकदम तकरीब में उस वक्त बदमज़गी छा गई जब बडगाम से ताल्लुक रखने वाले पार्टी के सीनियर लीडर आगा सैयद महमूद तकरीब से रूट कर चले गए. मुंतजिर मोहियुद्दीन के कुछ हामियों ने आगा महमूद की तकरीर के दौरान उस वक्त शोरगुल शुरू किया जब आगा महमूद ने कहा कि इन हामियों में बडगाम जिले के कई इलाकों से लोग आए हैं. शोर मचाने वालों का इसरार था कि वो सिर्फ बडगाम असेंबली हल्के से ताल्लुक रखते हैं. दरअसल आगा सैयद महमूद बडगाम असेंबली हल्के से पार्टी टिकट की उम्मीद रखते हैं. ऐसे में उनको ये बात नागवार गुजरी. मुंतजिर मोहियुद्दीन ने बाद में अपने हामियों के बर्ताव पर माफी मांगी और कहा कि वो पार्टी ओहदेदारों के हुक्म पर किसी भी जगह काम करने के लिए तैयार है.
आग साहबस को थोड़ा समझनस मज तम बेमार तम ये बाजी बड़ खसूसी इसरारस पे अनमित तमो न्यू थोड़ा मतलब तुम करो थोड़ा जम्बलिंग बस आग साहबस जाती तौर तक माफी मंगा पन्ने तरफ और तम कोहन मशक इंसान तम सीनियर लीडर तमो बस मिनिस्टर तम कर्म तम नुमाइंद तिमन बगैर अड़लिक तिमन बगैर नामुकम्मल अगर तिमन कह यस दिलस तो बस तिमन 2 मिनट बाजी रोकन माफी मंगान तिमन मज बैठ सबन सारी। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में कल श्रीनगर के हारवन इलाके से एक जुलूस बरामद हुआ। जुलूस का एहतमाम दावती मिनहाजुल इस्लाम ने किया था। ये जुलूस हारवन से निकलकर निशात पर इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस में हजारों लोगों ने शिरकत की। उधर बडगाम में भी ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में अंजुमन शरई शियान ने एक जुलूस निकाला। बड़ी तादाद में अकीदतमंदों ने जुलूस में शिरकत की। अल्लाह ताला हमें रसूल सल्लल्लाहु का जो नक्श कदम है जिसके लिए इस दुनिया में उसको भेजा गया, खुदावंद ताला हमें इनायत बख्श दे ताकि हम उस नक्शे कदम पर सही साबित कदम चले। ईद मिलादुन नबी के सिलसिले में जम्मू में एक सीरत कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। कॉन्फ्रेंस से रियासत के उलमा ने खिताब किया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को उजागर किया। ये हकीकत है, मोहब्बत का पैगाम ही ज्यादा जो तमाम उलमाए कराम जो थे, मुफ्ती आजम थे और जो दूसरे थे, उन्होंने कि इंसानियत और मोहब्बत ही इस्लाम जो हमारा इस्लाम का मकसद है और इस इस्लाम की रूह जो है वो मोहब्बत और इंसानियत है। ईद मिलादुन नबी हमारे लिए बड़ी खुशी का मौका है और मसरत का मौका है। इसी दिन के सदक़े हमारी पूरी दुनिया वजूद में आई, हर एक को अपना हक मिल गया है। इसी वजह से हम नबी पाक अलैहिस्सलाम की पैदाइश के मौके पर ये प्रोग्राम मनाते हैं। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में जम्मू में शिया फेडरेशन ने एक रोजा इस्लामी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। बड़ी तादाद में इस्लामी स्कॉलरों ने इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की और इस्लाम के पैगाम अमन मोहब्बत को आम करने पर जोर दिया। मैसेज जाए, अमन, शांति और प्यार मोहब्बत का एक पैगाम जाए, क्योंकि हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे जो पैगंबर थे उनकी तालीमात पर हम रोशनी डालें और उसके बताए हुए रास्ते पर चलें, अपनी उम्मत को जागृति करें और अमन और शांति के लिए हम सब उस पर काम करें। आज का ये फंक्शन इसलिए रखा हमने कि हम एक पूरी दुनिया में एक मैसेज दें जिसके अमन, शांति, क्योंकि इस्लाम हमें जो है वो एक अच्छे रास्ते शदीद सर्दी के बावजूद द्रास में हफ्ते मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाया गया। द्रास की गौसिया मस्जिद में तमाम छोटे जुलूस जमा हुए। इस मौके पर उलमा ने अवाम से खिताब किया। मेरे नबी ने फरमाया हर कोई अपने अपने हिसाब किताब में लगा होगा, हशर का दिन होगा। जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर ने जम्मू के मुख्तलिफ खित्तों में मुकीम बर्मा के बेघर अफराद में रिलीफ तकसीम की। इस मौके पर जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर के सीनियर रुकन एडवोकेट जाहिद अली ने कहा कि बर्मा के बेघर अफराद में खाने पीने की अशिया और कंबल तकसीम किए गए। ये बर्मा से आए हैं, म्यांमार से आए हैं, उनको वहां से भगा दिया गया है। ये बहुत गरीब हैं, इनके पास कुछ नहीं है, खाने के लिए, पहनने के लिए कुछ भी नहीं है। तो इनकी मदद के लिए हमने ये जमा किया है, उधर वादी में भी और जम्मू में भी बहुत जगहों पर, और अब इनमें बांट रहे हैं जमा इस्लामी जम्मू कश्मीर की तरफ।
वजीर बराए देही तरक्यात व पंचायती राज अली मोहम्मद सागर ने कल टिकीपुरा सोगाम में मॉडल विलेज का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर अली मोहम्मद सागर ने अवाम से खिताब करते हुए कहा कि वजीर आला उमर अब्दुल्ला की सरबराही वाली हुकूमत देही इलाकों में तामीर व तरक्की की रफ्तार तेज कर चुकी है और आइंदा इंतखाबात में लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस को मजबूत बनाए ताकि अधूरे काम भी मुकम्मल किए जा सके। पिछली हुकूमत ने हमने उनको पूरा कर दिया। उसमें से 2 मॉडल विलेज ऐसे रह गए हैं जिनमें डिस्प्यूट की वजह से काम नहीं हो सका। बाकी जो मॉडल विलेज हमने 100% रेस्टोर किए। अगर आपके पास कोई ऐसी शिकायत है, कोई ऐसा मॉडल विलेज है तो आप मेरी नोटिस में ला सकते और मैं उसको देख सकता। 9 तश्कील शुदा जमात जम्मू कश्मीर पीपल्स यूनाइटेड फ्रंट का दूसरी कन्वेंशन कठुआ में मुनक़िद हुआ, जिसमें फ्रंट के कन्वीनर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने फ्रंट के मकासिद और नस्बुलैन को उजागर किया। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो ज्यादा से ज्यादा तादाद में इस फ्रंट से जुड़ें। तारिगामी ने कहा कि हुकूमत लोगों के मसाइल हल करने में नाकाम रही है। राजौरी के डोंगी गांव के लोग आईएसएम डिस्पेंसरी में एम्बुलेंस की खराबी की वजह से सख्त मुश्किलात से दो चार हैं। लोगों का कहना है कि डिस्पेंसरी का एम्बुलेंस गुज़िश्ता 3 महीनों से खराब है और मुतालिका हुकाम इस जानिब तवज्जो नहीं दे रहे हैं और इमरजेंसी की सूरत में उनके पास कोई भी एम्बुलेंस नहीं है। बड़ी समस्या है ये एम्बुलेंस की। महीने से ये खराब है, ड्राइवर का बयान है 2.5 महीने से खराब है, तो हम तो 3 महीने से देख रहे हैं, हमें तो एम्बुलेंस यहाँ मिली नहीं है। मंत्री ने तो एम्बुलेंस दे दी, लेकिन महकमे ने आगे यह किया कि जब पहली सर्विस हुई दूसरी सर्विस के लिए आज तक महकमे के लिए डिपार्टमेंट के लिए पैसा नहीं है उनके पास। एम्बुलेंस ठीक है, एम्बुलेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ उसकी सर्विस ड्यू है। तो सर्विस के लिए मैंने आज गाड़ी भेज दी है, 2 दिन के अंदर गाड़ी ठीक होकर आ जाएगी तो मसला हल हो जाएगा। 3 महीने नहीं, मैंने तो टूर किया, खुद भी जाके देखा। मैं टूर कर रहा हूँ, पहले भी किया, अब भी टूर करूंगा। ये जल्द से जल्द इसकी जो परेशानी है स्टाफ की पंक्चुअलिटी भी हल हो जाएगी। श्रीनगर में कल कांग्रेस पार्टी के अमीरा कदल ब्लॉक के कारकुनों का कन्वेंशन मुनक़िद हुआ। इस मौके पर मुकर्ररीन ने रियासत में पार्टी को मजबूत बनाने पर जोर दिया। हडीगाम कोलगाम के लोगों को बिजली की अदम दस्तयाबी के हवाले से काफी मुश्किलात पेश आ रही हैं। इस हवाले से इलाके के लोगों ने एक अनोखा एहतजाज करते हुए ट्रांसफार्मर को कफन में लपेटकर महकमे बिजली के खिलाफ नारेबाजी की। इलाके में बिजली ट्रांसफार्मर खराब पड़ा है, जबकि बिजली की तरसीली लाइनें और बोसीदा खंभे लोगों के लिए वबाल जान बन गए हैं। यह जन 7 घरन हज बिल बाकी ट्रांसफार्मर सफर पोस फीस भरान सैनिस खूनस मश्क कर ये ट्रांसफार्मर हाल रूदमुत 1 वरी 3 रथ ट्रांसफार्मर पावर जालन मुकम्मल पत्मो 4 वरियों पे कहें तह आव 6 रतन मज अक सात आव यह 6 रत योर यम सात 6 रत बाद आव रात गो मतलब रात जोर अमुक पावर सुबह पे गई सफर वोत वेज ब्रोट 60 रुपये रतस फीस पेवान 367 फीस भरान कह बल्कि सफर गसान पे गैस पेवान इस्तेमाल गसान 1000 रुपये रतस पेवान गसान। आरागाम बांडीपुरा के छपरन इलाके के वार्ड 6 के लोगों का कहना है कि गांव को मनरेगा कामों में बिल्कुल नजरअंदाज किया जा रहा है। मकामी लोगों के मुताबिक अगरचे उन्होंने मुतादिद बार बीडीओ बांडीपुरा को इलाके में नरेगा के तहत काम शुरू करने का मुतालबा किया, ताहम उसके बावजूद इलाके में नरेगा के तहत कोई काम अंजाम नहीं दिया गया। दूसरी जानिब बीडीओ बांडीपुरा का कहना है कि स्कीम के तहत काम शुरू करने से पहले कई सारी बातों को ध्यान में रखना पड़ता है।
काम तो निकालना पड़ेगा। नरेगा के बारे में ये बात है कि हमारे गवर्नमेंट ने हमें 14 मार्क में दिए। हम जाते हैं ब्लॉक में, हम देखते हैं पुलान वापस वहां से कोई नहीं आता है। आज तक इस आरा गांव गुजर बस्ती में कोई नरेगा का काम किसी तरह से नहीं हो रहा है। डीसी साहब कहता है कि मेरे पास इतनी फंड्स है, मैंने भेज दी है, वो हर गांव में क्यों नहीं भेज दी है।